तो अभी आप सभी लोग सुन रहे हैं? हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. so Yes, sir. in our previous lecture we have studied many more things regarding International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. Popularly we call it as ICNCP. So the things are clear that just like International Code of Botanical Nomenclature, there is a separate code for international nomenclature for cultivated plants. Then question arises, which plants are cultivated? I think most of you are known whatever plants we are observing in forest, and without planting which arise, we call them as a wild forest, or wherever it may be, without plantation, whenever these plants arise, they are called as a wild plant. But there are certain also issues. For example, Argemone mexicana is not planted but it is observed, or Tridax procumbens is not planted but it is observed, because most of these are weed plants and basically these are alien species. Alien का मतलब है those which are not from indigenous from our area and brought to our area by any way from any of the other geographical area. Now, as far as cultivated plants considered, the thing is clear that whenever we say that rice, wheat, maize, or cotton, sugarcane, and many more other plants which are cultivated in the field, and these are called as the cultivated plants. And for this purpose, to give name to these cultivated plants was an issue, and ICBN of that time has proposed there should be a separate code for nomenclature of cultivated plants, and hence this code arises. So in our previous lecture, we have studied regarding this international code for nomenclature for cultivated plants. But remember, International Code for Botanical Nomenclature is not in existence now. And there is an International Code of Nomenclature, which we have studied earlier, but you should remember this thing continuously. I have deliberately shown here some of the cultivated plants just in the form of a 3D images. Now, as these are in PDF, PowerPoint, I could not make them. You can rotate these, you can change their shape, you can change anything. So you just think that these are different cultivated plants, either roses or monstera or chrysanthemum or any other plant which you are going to observe. आप सभी देख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So as far as International Code of Nomenclature for Cultivated Plant considered, it is also called as a Cultivated Plant Code. It is a guide to rules and regulations for naming cultigens, that means plants which are cultivated, plants whose origin or selection is primarily due to international human activities. Now, you are well known, whenever we are moving across one place to other place, many times we carry these plants for cultivation. आप अगर किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं और आपको अगर कोई प्लांट अच्छा लगा, आप उसका कटिंग, उसका सीडलिंग, नहीं तो उसका सीड, नहीं तो एनी ऑफ द प्रोपेगेबल पार्ट यू आर कैरिंग एंड यू ट्राई टू कल्टिवेट इन योर बैकयार्ड्स और होम यार्ड्स. So cultigens under the purview of ICNCP include cultivars or group of cultivars and grixes. All organisms traditionally considered to be plant, including algae and fungi, are included in this. For example, आपको पता होगा इक्विसेटम देखा है आप सभी ने? हेलो, इक्विसेटम कौन से क्लास से है? Yes, sir. Equisetum pteridophyta, yes. I think you might have observed the cultivated varieties of Equisetum. क्या आपने cultivated variety Equisetum के देखे हैं? No, नहीं sir. अच्छा, I can share some of the photographs later on so that you have idea how there is a difference in cultivated Equisetum and wild Equisetum. So there are at least several
plants observed in case of which cultivated varieties are different and wild varieties are different. Now, taxa that receive a name under ICNCP will also included within the taxa named under the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, Plant. For example, a cultivar is a member of a species. Cultivar ये member of species भी हो सकता है. इसके बारे में मैंने शायद आपके क्लासरूम पे जो शेयर किया था वहां मैं पीपीटी शेयर करना भूल गया. क्या सही है क्या? हेलो हेलो. मैंने पीपीटी शेयर नहीं की थी, शायद 1 या 2 बुक शेयर किए थे. इज इट राइट? Yes. I forgot to share it, and today I am going to share it. Actually, our today's topic is different. Our today's topic is related to hybrid plants or names of hybrid plants. But prior to going to hybrid plants, because I have completed this topic only in a huge topic, I have completed in a short period, and hence I have decided to repeat this along with the hybrid plants. Now, ICNCP was agreed in 1952 in Wageningen and published in 1953. So the first edition of the book, I have shared latest edition of this book with you. Almost it is PDF available on the internet. Followed by 7 subsequent editions, 1958, 1961, 1969, 1980, 1995 and 2009. So remember, as far as these international code for nomenclature of cultivated plants considered, just like international code of nomenclature for botanical sciences, they also meeting in the different meetings after a regular interval of about 4 years. William Stein has outlined the origin of ICNCP, tracing it back to International Horticulture Congress of Brussels in 1864. मतलब जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का ओरिजिन हम 18th century 19th century तक देखते थे, in the same way Horticultural Congress held at Germany in Brussels 1864, where a letter from Alfonso de Candolle to Eduard Mornay was tabled. Alfonso de Candolle ने इसके बारे में पहले लिखा था कि there should be a different code for cultivated plants. So because cultivated plants are different and wild plants are different. मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ. आप अगर मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए और सामने वाले हमेशा मार्केट में बोलते हैं कि XYZ सब्जी गावरान है. गावरान का मतलब क्या होता है? या जवारी बोलते हैं या और कुछ बोलते होंगे. क्या मतलब है? हेलो, ऑर्गेनिक है. नहीं, नॉट ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक का मतलब है आप जहाँ केमिकल नहीं यूज करते, ऐसी जगह ऐसी कंडीशन में जो कल्टीवेट किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक. बट एज फार एज सच अ टाइप ऑफ just as far as Gauran or Zawari considered, it means it is a traditional or conventional variety and not a hybrid or cultivated variety. आ रहा है ध्यान में? Yes, सपोज टू भी आप सांभर लेते हैं और Yes, वो sir. सामने वाला आदमी बोलता है कि ये गावरान है, और आपको मालूम है उसकी खुशबू भी अलग, उसका साइज शेप भी अलग, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, और क्वांटिटी भी आपको कम मिलती है, बिकॉज इट हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इट इज सपोज टू बी वाइल्ड वैरायटी, सपोज टू बी बोल रहा हूं मैं. और आप देखते होंगे अलग अलग सब्जियां जो मार्केट में मिलते हैं, बड़े बड़े फ्रूट्स रहते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि इसको कोई टेस्ट नहीं है. सही है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखा होगा आपके घर के लोग बोलते हैं कि पुराने जमाने में सब्जी को अलग टेस्ट थी, अभी सब्जी को कोई टेस्ट नहीं बची. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज इन स्पाइट ऑफ वाइल्ड वैरायटीज और इन स्पाइट ऑफ द वाइल्ड इंडिविजुअल, नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कल्टिवेटेड वैरायटीज और कल्टिवेटेड स्पेसीज. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड वैरायटीज. कई बार आपने बोटेनिकल नेम के सामने देखा होगा XYZ बोटेनिकल नेम, उसके सामने वाइल्ड ऐसा लिखा है. हेलो, Yes, sir. हाँ. सो आप लोगों को अभी कम से कम आइडिया है रिगार्डिंग द वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड वैरायटीज. नाउ
as far as after Decandole's letter, ICNCP starting की शुरुआत वैसे हो गई. This set out the Candole's view that Latin names should be reserved for species and varieties found in the wild, with non-Latin names or fancy names used for garden forms. अब ये तो आइडिया आपको हो गई है कि गार्डन फॉर्म्स या कल्टीवेटेड फॉर्म्स के लिए नया नाम की शुरुआत डिकैंडोलेस के व्यू के बाद में हो गई थी. डिकैंडोले, who has legal background, draw up the Louis D. La nomenclature botanique, that is the rules of botanical nomenclature, when adopted by the International Botanical Congress of Paris in 1867. This became the first version of today's International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants. अभी इसमें अलग अलग आर्टिकल्स और इतने डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है. लास्ट टाइम आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग. So Article 40 of the Louis D. La nomenclature botanique deals with the name of plant of horticultural origin, and this article survived redrafting of the International Rule of Botanical Nomenclature until 1935, and its core sentiments remain in present day ICNCP of 2009. ठीक है, जो भी चेंजेस है वो हम देखेंगे. अब नेम्स के एग्जाम्पल दिए हैं. For example, ICNCP operates within the framework of International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants, which regulate the scientific name of plant. Following are some examples of names governed by the ICNCP. For example, Clematis alpina. यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दो, Clematis alpina को इटैलिक करना जरूरी था because it is a botanical name. कोई बता सकता है Clematis alpina का फैमिली कौन सी है? एनीबडी? हाँ बोलो, अगर नहीं है तो नहीं है, बोलो, कोई इश्यू नहीं है. हेलो, नहीं पता सर, नहीं पता. ओके. इसके पहले मैंने कभी आपसे क्लिमेटिस गौरियाना या क्लिमेटिस हिरिसिडिफोलिया प्लांट की इमेज शेयर की थी? हेलो, इसके पहले मैंने कभी इमेज शेयर की थी क्या? अच्छा, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, मैं आपसे इमेज शेयर कर दूंगा. कोई इशू नहीं. जस्ट मिनट, मैं इमेज, हाँ जस्ट मिनट, मैं इमेज फाइंड आउट करके आपको शेयर करता हूँ, सो दैट इट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. जस्ट मिनट, मुझे सिर्फ वो मिलनी चाहिए. यस 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 यस, मिल गया मुझे. लेकिन आप इमीडिएटली देख नहीं पाओगे क्योंकि आप व्हाट्सएप नहीं अभी देख सकोगे ना. हेलो हेलो. यस सर. यस सर. अभी आप व्हाट्सएप नहीं देख पाओगे क्या? देख सकते हैं? देख सकते हैं सर. अच्छा, अगर देख सकते तो देख सकते हैं तो 1-2 मिनट के बाद देख लो, क्योंकि डाउनलोड होने के लिए टाइम भी लगेगा. वैसे मैं आपको बताता हूँ मैंने शेयर क्या किया है. आराम से बाद में भी देख सकते हैं. मैंने पहले 1, 2, 3 और 4 इमेज शेयर किए हैं. ऑल दीज 4 इमेजेस ऑफ इक्विसेटम. ठीक है, इक्विसेटम के बारे में मैंने बताया था. कल्टिवेटेड स्पेसीज और हाइब्रिड स्पेसीज ऑफ इक्विसेटम एंड वाइल्ड स्पेसीज ऑफ इक्विसेटम. तो जस्ट आप देखोगे यहाँ फिगर्स तो पता चलेगा कि हाउ दीज कल्टिवेटेड स्पेसीज आर. उसके बाद मैं और एक 2 नेक्स्ट फिगर, सक्सेसिव फिगर जो है, दीज आर द व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स ऑफ योर क्लिमेटिस गौरियाना एंड क्लिमेटिस हिरिसिडिफोलिया. जस्ट तो आपके ध्यान में आ रहा है, मैंने अभी इक्विसेटम का एक एग्जांपल दिया था और क्लिमेटिस का. तो क्लिमेटिस के फ्लावर्स मैंने आपसे शेयर किए. क्लिमेटिस बिलोंग्स टू फैमिली राननक्यूलेसी एंड इट्स नेम इज अ रूबी. A cultivar within a species, that cultivar epithet is in single quotes and capitalized. That is ruby. Capitalize किया है और ruby लिखा है. Then another is Papillopodium. क्या आप लोगों को Papillopodium के बारे में पता है? हेलो, Papillopodium is an orchid having very attractive flowers. मैं Papillopodium का भी फ्लावर आपसे शेयर करता हूँ. और शायद बोल रहा हूं मैं, उसका जनरल नेम या कॉमन नेम लेडी स्लीपर ऑर्किड है.
So it has a beautiful color as well as a shape. So in case of a Papilopodium, MS qualithanum, a hybrid produced by scientists of JNTBGRI, that is Tropical Botanical Garden, by crossing South Indian endemic species Papilopodium drureri and Thailand species of Papilopodium exul. मैं आपसे Papilopodium की भी फ्लावर्स शेयर करूंगा बाद में, और नहीं तो लास्ट ईयर अपन ने ऑर्किडेसी फैमिली पढ़ी थी, तो ऑर्किडेसी में Papilopodium के फ्लावर शायद हो सकता है मैंने कभी आपसे शेयर की, नहीं तो बाद में कर लूंगा. So you just go through both these. In both these cases, why they are hybrid. Here the example is clear. Papilopodium MS qualithanum, a hybrid produced by scientists of JNTBGRI, मैंने अभी बताया था, Tropical Botanical Garden Research Institute, by crossing South Indian endemic species. मतलब South India का Papilopodium जो wild है वो, और Papilopodium drureri from Thailand species, that is species Papilopodium exul. So in such a way these hybrid plants are produced. Now the next example is regarding Magnolia Elizabeth. Here you come across the term Magnolia, belongs to family Magnoliaceae, and Elizabeth is individual who has find out this species or name given to this species is Elizabeth, a cultivar within a hybrid between two or more species. जब एक से ज्यादा स्पेसीज को क्रॉस किया जाता या ग्राफ्ट किया जाता या बडिंग किया जाता और जो स्पेसीज बनती, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड. मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको पूछ रहा हूँ. क्या आपको पता है कि हाइब्रिड मैंगोज में अलग अलग टाइप के मैंगोज आजकल मार्केट में अवेलेबल है? या आपने क्या सुना है एक ही प्लांट के अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग टाइप के, मतलब साइज, शेप, स्ट्रक्चर, टेस्ट के आम आते हैं? क्या आपने सुना है? यस सर. सुना है. आप में से कोई जानता है एक मराठी मैगजीन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, आबा पाटील पत्रिका? किसी ने सुना है? हेलो सर. किसी ने सुना है क्या? नो सर. अगर नहीं सुना और नहीं सुना तो आप इंटरनेट पे डाल के देखो, सिर्फ आबा पाटील पत्रिका. अगर आप आबा पाटील पत्रिका, ये मैगजीन मराठी मैगजीन है, अगर देखोगे तो देयर इज इनॉर्मस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल वैरायटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, हाउ टू कल्टिवेट दिस. आई हैव कम अक्रॉस वन आर्टिकल इन दॅट. मी त्याच्यापैकी एक आर्टिकल माझ्या वाचनात आलं, and one of the person from Hingoli district has डेवलप्ड वन वैरायटी ऑफ मैंगो. अब उसने मैंगो की वैरायटी कैसे डेवलप की, मैं आपको सिर्फ फिजिकली बताता हूँ. देखो उसने क्या किया, एक एक फीट के डिस्टेंस पर अलग अलग 16 वैरायटीज लगाए. आपके ध्यान में आ रहा है? हेलो, 16 वैरायटीज ऑफ मैंगोज लिए और ये एक एक फीट के यानी पेरीफेरी में लगाए सर्कल के. बाद में उसने क्या किया, दो अलग अलग वैरायटी को ज्वाइन किया, यानी उनका क्या किया, ग्राफ्ट बनाया. कटिंग जैसे आप बनाते ना वैसे पोर्शन कट करके एक किया. तो 16 वैरायटी में से उसके फाइनली प्लांट कितने होंगे? 8. ठीक है? हेलो, यस सर. बाद में फिर उसने क्या किया कि ये 8 वैरायटीज को एक साल बढ़ने दिया. अभी नीचे प्लांट 16 है, ऊपर स्टेम का पोर्शन 8 है. फिर उसने क्या किया, उनमें से एक एक को फिर ज्वाइन किया, मतलब 4 प्लांट के एक एक स्टेम फाइनली आएगा. ऐसा करते करते उसने जो फाइनली प्लांट उसको मिल गया था, दैट प्लांट शोज वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. और ये इंटरेस्टिंग फीचर कौन सा था? तो डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट टेस्ट ऑफ मैंगो इज ऑब्जर्व. लेकिन दिस इज नॉट फिजिबल, मतलब लार्ज स्केल पर ये एक्सपेरिमेंट ये नहीं हो सका, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट द थिंग्स मेनी टाइम्स, देन डिफरेंसेस अराइजेस इन सक्सेसिव जनरेशन. सो वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टिवर्स परफॉर्म डिफरेंट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट्स. हम नेक्स्ट देखते हैं. Many of the rules in International Code of Nomenclature for cultivated plants deal with
sorting out the problem which has arise in the past nomenclature, यानी past nomenclature में जो भी problems आए उसको sorting करने का सही में काम होता है. Following short notes are intended as a quick guide to farming new cultivar names and should be read by anyone wishing to name a new cultivar. For prices regulations, the ICNCP is to be consulted. प्राइजेस को रेगुलेट करने के लिए आईसीएनसीपी को आपको कंसल्ट करना है. फॉलोइंग आर सम ऑफ द रूल्स टू व्हेन फॉर्मुलेटिंग ए न्यू नेम. अब रूल क्या है देख लेते. एक जस्ट मेक श्योर योर प्रपोज्ड नेम इज यूनिक एंड दैट द एपिथेट इज एन मॉडर्न लैंग्वेज अदर देन लैटिन. मतलब आपका नाम यूनिक होना चाहिए. शायद आपको पता है आपके क्लास में अगर एक ही नाम के दो लड़के या लड़कियां हैं और सिर्फ नाम लिया तो एक दूसरे की तरफ दूसरा तीसरे की तरफ देखते रहता है. तो जस्ट लाइक दैट सच ए चॉइस शुड नॉट बी देयर एंड फॉर दिस पर्पस द व्हाटएवर नेम यू आर गोइंग टू प्रपोज इज शुड बी यूनिक. आपको पता है आप जब भी आपका मेल आईडी बनाते हैं तो मेल आईडी बनाते वक्त क्या बोलते हैं कि इट शुड बी यूनिक. और आपको पहले देखना पड़ता है कि वेदर द नेम इज अवेलेबल और नॉट. सही है? Yes, sir. Just like that, in while naming the or while giving the name to cultivated plant, you should take proper care. Make sure that your name cannot be confused either in spelling or in pronunciation with an existing one. मतलब एग्जिस्टिंग नाम जो है उससे कोई भी रिलेशन उसका होना नहीं चाहिए. इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नेम. मेक श्योर दैट योर नेम कुड नॉट बी इंटरप्रिटेड एज बीइंग लाइकली टू एग्जैगरेट द मेरिट्स ऑफ कल्टीवर. कल्टीवर के मेरिट्स को एग्जैगरेट करना नहीं है. मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये आम खाने के बाद मेरे में बहुत पावर आती है, नहीं तो बहुत पावर आने की चांसेस है. दिस इज एग्जैगरेशन. मतलब आप अगर समझ लो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं तो आप आम खाने के बाद आप 16 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकते, इतनी शक्ति आती. सो दिस इज जस्ट ए एग्जैगरेशन. आ रहा है ध्यान में? एग्जैगरेशन में किसी चीज को वास्तव में नहीं है उससे ज्यादा बढ़ावा देना. तो नेक्स्ट देखते. मेक श्योर दैट द एपिथेट ऑफ योर नेम हैज नो मोर देन 10 syllables एंड नो मोर देन 30 कैरेक्टर्स. मतलब ये इतना छोटा होना चाहिए कि उसमें 30 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. एक्सक्लूडिंग स्पेसेस एंड द सिंगल कोटेशन मार्क्स अगर है तो. बोटेनिकल नेम में ऐसा कोई भी कोटेशन मार्क्स नहीं है, लेकिन साइंटिफिक नेम में नहीं है, लेकिन कल्टिवेटेड नेम में कोटेशन मार्क्स है. इसके पहले हमने बहुत सारे देखे थे. सो as far as our epithet consider, cultivar, grapes, group, hybrid, maintenance, mixture, selection, series of sports, strain, variety, ऐसे अलग अलग वर्ड्स आने के चांसेस है. जस्ट अ मिनट. अनुप मैं 2 घंटे के बाद बात करूंगा, मैं क्लास में हूँ. हाँ 12:30 के बाद. सो as far as these different names considered, these are included in this International Code of Botanical Nomenclature. Then next, do not use any punctuation mark except for the apostrophe, comma, a single exclamation mark, hyphen and the full stop, etc. तो ये सभी तो आप जानते हैं. इसके बाद हमने अलग अलग varieties of टोमेटो देखे हैं. आप सभी लोगों ने टोमेटो को ये फोटोग्राफ्स देखे हैं? Yes, sir. इन फोटोग्राफ्स में जो टोमेटो आपने इन फोटोग्राफ्स में आपने जो भी टोमेटो देखे हैं, क्या ये वैरायटी मार्केट में है क्या नहीं है? हेलो हेलो. हाँ सर. मार्केट में ये वैरायटी है. मार्केट में these varieties are available but you are unknown regarding its name. वो पंजाब चौराहा है या वो अर्का सौरभ है या अर्का विशाल है या अर्का वर्धन है या अर्का श्री श्रेष्ठा है, ये आपको मालूम नहीं है. आप हमेशा मार्केट में गए तो आप नाम पूछते कि नहीं वैरायटी का, ये कौन सा है? चावल लेने गए आप पूछते कि नहीं कौन सा है?
आप पूछते तो वो बताता काली मूछ है, वो बताता कि ये चिन्नौर है, ये एचएमटी है, ये टाइचुंग है, ये IR8 है, ये सुवर्णा है, because these are the local names by which the variety is more popular. So just like that, in case of tomato, such a type of several varieties are under cultivation. उसके बाद मैंने कुछ कमर्शियल हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ sorghum के बारे में बताया था. अब यहाँ जो कल्टिवेटेड sorghum वैरायटीज है, दैट इज PC6, PC9, PC23, HC171. लेकिन remember well, these varieties shown here, these are at the international level. So most of us may not have heard the name of these varieties also. But as far as we considered, we are known with the varieties such as, for example, CSH1, CSH2, CSH3, 4, 5, 6, etc. regarding the jawar. CSH means Coordinated Sorghum Hybrid Program or sorghum hybrid. CSH is project in our country which going on since 1970, and through which about 10 different varieties of jawar are under cultivation. You might be known with other local varieties such as Maldandi or Dadar. These are the local varieties of jawar. So you just go through these different varieties which are available in our country and how much ton of fodder obtained from these varieties. So this is one chart which is taken from XYZ website. आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. हाँ, अगर सुन रहे हैं तो मैं एक दो चीजें जरूर क्लियर करता. देखो, मैंने आपसे जो भी रीडिंग मटेरियल शेयर किया है, जो भी लिया है, that is not my own creation, that is a compilation. कुछ चीजें जरूर मेरी खुद की है, फोटोग्राफ्स होंगे, कुछ सेंटेंसेस होंगे, लेकिन ये इंटरनेट से लिया हुआ मटेरियल है. जहां जहां अवेलेबल है मैं उसका सोर्स भी दे रहा हूँ. वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, सभी मटेरियल आपको जो शेयर किया गया है, मैंने आप सभी को बोला है दिस इज फॉर दिस सेमिस्टर ओनली. और आप लोग इस मटेरियल को दूसरे किसी स्टूडेंट से शेयर नहीं करोगे, क्योंकि उसमें घाटा आपका ही है. रेडीमेड मटेरियल दूसरे को मिल जाता, लेकिन इन रिटर्न ऑफ दैट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट दिस मटेरियल इज टेकन फ्रॉम वेरियस अवेलेबल मीडिया. हो सकता है इंटरनेट के वेबसाइट होंगे, नहीं तो कुछ अलग अलग बुक्स है जो मेरे कलेक्शन में उसमें से होगा. और जहां जहां पॉसिबल है वहां मैं नॉर्मली उसका साइट करता हूं, जहां देने की कोशिश करता हूं, लेकिन दिया नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा मेरा क्रिएशन है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते. Recommended Hirsutam varieties of for Maharashtra, that is different varieties of a cotton. I think it is best known to you. Cotton is very important cultivated plant from Maharashtra, specifically from Vidarbha. And as far as cotton considered, there are 6 different varieties. You are better known. There are upland cotton, old world cotton, new world cotton, Egyptian cotton, and what not, different types of varieties. So as far as Hirsutam variety is considered, there are different Hirsutam varieties. आप यहाँ सिर्फ नाम देख लो. बुरी 1007, AKH 081, DHY 286, रजत और HKH 84635, SRT 1, LRA 5166, LRK 516, MCU 5, लक्ष्मी एंड अंकुर. आपको मालूम है अजीत होगा, नाजुवीडी होगा, नहीं तो निमकर सीड्स होगा. देर आर डिफरेंट seed formation or seed cultivating agencies, and they produce different types of hybrid seeds with different characteristic features. The characteristic features may be different, but their names are very much interesting. अब देखो, the name Lakshmi name always attracts to farmers in spite of such a MCU, LKR, LRA, or supposed to be LRK or DHY, AKH, etc. Or even Ankur is also attractive name. So such a type of names are given to different varieties of cotton also. And now our today's topic, that is related to hybrid names. I think at this stage things are very clear, and you are known with the enough difference in wild variety and hybrid variety.
इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, अब sir. मैं फिर से आपको बताता Yes, sir. यस Yes, sir. फिर से अभी बताता हूँ आपको। चलो, हम जितने Yes, भी sir. इन आवर सराउंडिंग हम जितने भी टिक्टोना प्लांट्स देखते हैं, क्या वो प्लांट्स कल्टीवेटेड है या वाइल्ड है? टिक्टोना या टिक के हम जितने भी प्लांट्स देखते हैं, क्या ये प्लांट वाइल्ड है या कल्टीवेटेड है? Wild है sir. नहीं, वाइल्ड कैसे लगाए हुए हैं हमने लाके? अब इंस्टीट्यूट के प्रीमाइस में टिक के प्लांट, वो वाइल्ड कैसे हो सकते? वाइल्ड कैसे हो सकते? हेलो, आपके ध्यान में आ रहा है क्या नहीं? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. अपने कैंपस में जो भी टिक के प्लांट है वो वाइल्ड हो ही नहीं सकते। अब आप फॉरेस्ट की बात करो, फॉरेस्ट में भी क्या ये प्लांट सही में वाइल्ड है क्या? हेलो, हाँ. फॉरेस्ट में भी नो, दीज आर आल्सो अगेन कल्टीवेटेड प्लांट्स। चलो, मैं टिक के बारे में एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। क्या आपने बर्मा टिक ये नाम सुना है? बर्मा टिक, हाँ, sir. Burma teak is supposed to be a special type of variety available in the Burma, and just like this Burma teak, qualitative features are observed in some of the varieties of teak from Bhamragad, Alapalli and Sironcha area of Maharashtra. Example clear है आपको? Why teak Yes, from sir. Alapalli area is considered as the most superior variety? It has a different characteristic feature. चलो, मैं और एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। टोबैको में वर्जीनिया टोबैको नाम की एक वैरायटी है, क्या आप जानते हैं? वर्जीनिया टोबैको। Yes, sir. हाँ, शायद आपने देखा होगा कि अलग अलग जो भी ये है क्या, सिगरेट के पैकेट्स। Yes, sir. No, sir. कंफ्यूज मत हो, आपने अलग अलग ब्रांड के सिगरेट पैकेट्स देखे होंगे और उस पर लिखा हुआ रहता है कि दिस ब्रांड इज मेड अप फ्रॉम बेस्ट क्वालिटी वर्जीनिया टोबैको, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. आपने देखा नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप देखो अभी इसके बाद, तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि इट इज मेड अप फ्रॉम बेस्ट क्वालिटी वर्जीनिया टोबैको। Virginia is a province in America, and in that special type of variety observed, which has special characteristic features. अब मैं दूसरा बताता हूँ। Similar type of Virginia tobacco cultivated also in Maharashtra. आप किसी को पता है? हेलो हेलो, No, sir. No, sir. Virginia tobacco is collected in Gadchiroli district itself. चलो वो छोड़ देते, अपन उस एग्जांपल के तरफ बाद में आते। सबसे ज्यादा टोबैको कल्टीवेशन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, इंडिया में? हेलो, महाराष्ट्र कर्नाटका में सबसे ज्यादा टोबैको कल्टीवेशन कहाँ है? Don't know, sir. Tobacco is cultivated No, largely. sir. Okay, tobacco is cultivated on the large scale in Nipani area of present Karnataka. कर्नाटका मध्ये बेळगाव जिल्ह्यामध्ये निपाणी एरिया आहे. निपाणी is supposed to be abode of the tobacco cultivation in our country. But even in Nipani, such a type of Virginia tobacco is not cultivated, or that quality parameters are not observed from Nipani tobacco. I have told you that such a type of tobacco cultivated in Ankisa and Alapalli area of Gadchiroli district is supposed to have such a type of Virginia tobacco quality. आप में से कोई यहाँ गया है? गडचिरोली में त्रिवेणी संगम कहाँ है? एक बामरागढ़ एरिया और दूसरा, हेलो, साउथ मोस्ट एंड कौन सा है गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट का? हेलो, सिरोंचा के बाद करीबन 30 किलोमीटर पर ये एरिया है अंकिसा, असरअली और अंकिसा। इन दैट एरिया वेरी क्लोज टू, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, एक होगा 100-200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया,
that is on the bank of river Indravati and river Godavari. In this area only this tobacco is cultivated and it is of Virginia tobacco. So name to these different cultivated plants has been given by the cultivar itself. अब हम देखते हैं hybrid names. So you just have idea that hybrid names are names to that variety or that plant, and these are very much different from botanical names itself. In botanical nomenclature, a hybrid may be given a hybrid name. अब मैं और एक सिंपल एग्जांपल प्रायर टू स्टार्ट इट आपको पूछ रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं why we are planting are cultivating hybrid crops? Hello, hello. सर फिर से बोलिएगा. Why we are cultivating hybrid crops? हम हाइब्रिड क्रॉप्स का प्लांटेशन या कल्टीवेशन क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल हम HMT लगाते हैं, जय श्री राम लगाते हैं, सुवर्णा लगाते हैं, रत्नागिरी 24 लगाते हैं. व्हाई? प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए. जयंत सुन रहा है क्या? हेलो. यस सर. आपके एरिया में हेलो. हाँ, आपके एरिया में राइस जब कल्टीवेट करते हैं तो सीड स्टॉक मार्केट से लाते हैं या प्रीवियस जनरेशन से स्टॉक किया हुआ रहता है सिलेक्टेड, वही यूज करते हैं? सर कोई कोई प्रीवियस जनरेशन वाले रहते और कोई कोई नए लाते मार्केट से. अब इन दोनों में यील्ड किसको ज्यादा मिलता है? जो मार्केट से नए लाते वो. मार्केट से लाते उसको. एंड रीजन बिहाइंड दिस इज a special combination of fertility or special combination of productivity is maintained in hybrid, but the same combination will not arise in the successive generation, and hence peoples are हाँ बोलो बोलो बोलो. सर आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है. एट अ टाइम एक ही बोलो तो मुझे सुनाई देगा, आपके आवाज मिक्स हो रहे हैं. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? एक बोलो. मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आवाज सर अब आ रही है. अभी आया सर, अभी तक नहीं. ओके ओके. मैं ये बात बोल रहा था कि मार्केट में जो वैरायटी आप हाइब्रिड सीड की लाते हैं, दैट वैरायटी हैज बीन मैनिपुलेटेड वैरायटी फॉर वन जनरेशन ओनली. व्हाटएवर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर दैट इज डिजायर्ड फॉर वन जनरेशन, उसके बाद में सेम मैनिपुलेशन होना पॉसिबल नहीं है. और दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर टू टेक हाइब्रिड सीड्स फ्रॉम मार्केट. और जो कन्वेंशनल वैरायटीज है, जैसे अभी जयंत ने बताया था, कुछ कुछ लोग प्रीवियसली क्रॉप से सिलेक्ट करके लगाते हैं लेकिन उनको यील्ड कम मिलता है. सो हाइब्रिड सीड्स आर इंपॉर्टेंट, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट अ हाइब्रिड नेम शुड बी क्रिएटेड फॉर प्लांट दैट आर बिलीव्ड टू बी ऑफ अ हाइब्रिड ओरिजिन. नाम कुछ भी हो सकता है, नाम जो कल्टीवर है वो रख सकता है. तो चलो हम थोड़ी सी अलग बात कर लेते. क्या आपने दादाजी खोब्रागड़े नाम के इंसान का नाम सुना है? Hello, regarding cultivation of a rice variety? Yes sir. Yes, sir. I think most of you might be known with this person. I have opportunity to meet him 2-3 times.
I think in 2016 there was a agricultural expo, and in that expo I have met to him last. So as far as this person considered, Dadaji Khobragade, he has developed so many varieties of rice. I think one of the variety is DSK. क्या सही है? DSK नाम की राइस वैरायटी है? हेलो, आहे. So that DSK belongs to that Dadaji Khobragade. But I think you might be known, or you might have heard the conflict regarding different agricultural universities and that DSK person. Many more varieties, I think people say that these varieties are developed by Dadaji Khobragade, but agricultural universities stolen his varieties and published by different name. अब इन varieties को HMT नाम क्यों आया? हेलो, इसमें से कुछ नाम के वैरायटी अगर देखिए तो HMT का मतलब क्या है? कोई बता सकता है HMT? जयंत? माहिती नाही सर. अच्छा, राइस की वैरायटी नहीं हाँ, बोलो. सर, राइस की वैरायटी ना HMT, तो राइस की वैरायटी ना HMT, यानी नाम है एक राइस का. हाँ, लेकिन राइस का नाम HMT है, ये ठीक है, लेकिन HMT का मतलब क्या है? फिर ऐसा मत बोलो HMT का नाम, HMT का मतलब राइस है. मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आया ना? अगर समझ लो मैंने पूछा कि आप दो कहाँ रहते, ये मेरे घर के सामने रहता है, और वो कहाँ रहता, वो मेरे घर के सामने रहता है, और आप दोनों कहाँ रहते, एक दूसरे के सामने. ऐसा जवाब नहीं है इसका. हेलो, HMT को कुछ तो मीनिंग होगा. ओके, आप सुन रहे हैं ना? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. HMT घड़ी का नाम है, आपने देखा होगा, ब्रांड सुना होगा. यस सर. Yes, sir. रिस्ट वॉचेस जो है Yes, उसमें से लीडिंग इंडियन कंपनी इज HMT, दैट इज हिंदुस्तान या हेवी मेटल टूल्स, ऐसे कुछ तो कंपनी का नाम है, दैट इज इन द कर्नाटका. एंड just 20-30 years ago in our country, HMT watches are much famous, and that's why the person has kept the name HMT and nothing behind this. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि नेक्स्ट सक्सेसिव वैरायटी का नाम उन्होंने DSK रख दिया. तो ए कल्टीवर or producer of a hybrid seed or hybrid material can keep any name to any cultivated variety or produced variety. Just a minute. Sorry. So the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants provides the following options in dealing with hybrid. अब हाइब्रिड के नाम देते वक्त क्या ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस के बारे में हम देखते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया, HMT वैरायटी है, सोनालिका वैरायटी है. सोनालिका वैरायटी इन केस ऑफ व्हीट, और सपोज टू बी कल्याण सोना वैरायटी ऑफ व्हीट, or supposed to be Sarbati Shonera variety of wheat, or supposed to be Ganga Saped 2 variety of maize. क्या आपने ये गंगा सफेद 2 नाम सुना है? हेलो, नो No, sir. नो सर. अच्छा, No, sir. मेज में आपने कोई ऐसी वैरायटी देखी है कि जो सफेद कलर का मेज है? मेनी टाइम्स हम देखते हैं लाइट येलो or light yellow to dark yellow or orange color observed in case of a maize, isn't it? And hence flower of maize is also yellowish in color. ये तो आप लोगों ने देखा है. हेलो, Yes, sir. हाँ, मेज में देखा है. But there is one variety, Ganga 2. Ganga is a name of variety, but it is known as Ganga Saped 2, and this variety is white in a color, and seeds which are आपण ज्याला चपटे म्हणतो मराठीत, जसं तुमचा कॉर्न ह्याचा स्वीट कॉर्नचा असतो ना चपटा, such a type of variety, Ganga Saped 2. Anybody of you have heard the variety that is Vitthal in case of maize? Hello. No, sir. There are 2 varieties in case of a maize. One variety is named as Vitthal and another variety is Rukmini. Vitthal variety is comparatively of a moderate size or moderate height, and Rukmini variety is a dark variety.
I think many of you might be known, maize is supposed to be rain-fed crop. यानी मेज को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, हेंस ऐसे बहुत सारे एरिया में मेज इज कल्टीवेटेड ऑन द लार्ज स्केल एज अ रेनफील्ड क्रॉप। और अगर हवा तेज से बहती है तो फॉल होने के चांसेस है। टू अवॉइड दिस, सच अ टाइप ऑफ विठल एंड रुक्मिणी वैरायटीज आर कल्टीवेटेड रिगार्डिंग द मेज। मैं और एक वैरायटी बताता हूँ मेज की, अफ्रीकन टॉल वैरायटी का नाम सुना है? हेलो? नहीं सर। नहीं, African tall variety of maize has a height of up to 12 feet. आप you just imagine height कितनी है? 12 feet. And stem has a diameter of about 4 to 5 centimeter. किंवा 3 to 5 centimeter, 3 ते 5 centimeter म्हणजे almost हाता एवढा जाड. And this variety is more leafy variety, and that's why it is cultivated on the large scale for fodder production. I again repeat the variety I have told, that is African tall. So this is tall variety of a jawar. So many times such a type of names given to variety, they depend on cultivar who is going to give it name, or who is going to produce that variety. अभी थोड़ा देख लेते क्या है। A hybrid may get name. This will usually be the option of choice for naturally occurring hybrids. चलो मैं और एक एग्जांपल थोड़ा क्लियर करता। क्या आप में से किसी को देवधान मालूम है? यस सर। हाँ, अगर मालूम है तो किसको देवधान बोलते, थोड़ा बताओ। हेलो, भंडारा गोंदिया वाले बता दो, देवधान किसको बोलते? एनीबडी? सर नाम सुना है उसका। जयंत, जयंत, अरे जयंत है क्या? हाँ सर। हाँ सर। देवधान के बारे में कुछ सुना है? देवधान नहीं नहीं। देवधान का मतलब है जो कल्टीवेट किया। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। नॉर्मली अलोंग द रोड साइड और इन द एरिया ऑफ वेटलैंड, जहां पॉन्ड्स है, डीचेस है, पडल्स है, इस एरिया के अराउंड जब भी धान आता है जो किसी ने कल्टीवेट किया नहीं है, दैट वैरायटी ऑफ राइस इज कॉल्ड एज अ देवधान। देवधान का मतलब है जो अपने आप आया ऐसा। एंड इट्स सपोज टू हैव सर्टेन नेचुरल वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैं क्या बोल रहा हूँ आपके ध्यान में ले लो उसको। इस वैरायटी को अपने एरिया में नॉर्मली इन एरिया ऑफ कुरकेड़ा, लाखांदूर, लाखनी, दिस एरिया सच अ टाइप ऑफ देवधान इज अवेलेबल। दिस वैरायटी इज वाइल्ड वैरायटी, उसको किसी ने कल्टीवेट किया नहीं है, अपने आप आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई इन दिस एरिया दिस इज कॉल्ड एज अ देवधान। अब और एक वैरायटी राइस की मैं बताता हूँ। आपने मासड़ नाम की वैरायटी सुनी है, विच इज ब्लैक इन कलर, हस्क एज वेल एज राइस is rice itself blackish or brownish in color, but husk is dark black in color. आपने सुना है? यस सर। ओके यस सर। ओके, बहुत बार आपको पता है कि आप बोलते हैं कि चावल खाने के बाद जल्दी भूख लगती है क्योंकि वो इमीडिएटली डाइजेस्ट होता है, और सपोज टू बी सुवर्णा और एचएमटी खाने के बाद इमीडिएटली भूख लगती बोलते। लेकिन ऐसे जो वाइल्ड वैरायटीज है वो खाने के बाद आपको भूख इमीडिएटली नहीं लगती, बिकॉज इट्स केमिकल कंपोजिशन इज अ डिफरेंट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव पैरामीटर्स ऑफ cultivated variety and qualitative parameters of wild varieties. So hybrid may get a name. This will usually be the option of choice for naturally occurring hybrids. Hybrid may also be indicated by formula listing the parents. उसके पेरेंट्स को भी लिस्ट किया जाता, उसके पेरेंट्स के बारे में भी बताया जाता। Such a formula uses multiplication sign, मतलब फॉर्मूला जो है मल्टीप्लीकेशन साइन। जैसे आप सपोज बात कर रहे हैं कि दो मस्टर्ड की वैरायटीज के, आप बोलोगे कि सपोज फॉर एग्जांपल ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस क्रॉस विद ब्रासिका रैपा, सो दैट इज द मल्टीप्लीकेशन साइन टू लिंक द पेरेंट्स, मतलब पेरेंट की लिंक दिखाने के लिए। जैसे हम जेनेटिक्स के एग्जांपल में लिखते हैं स्पेसीज ए क्रॉस विद स्पेसीज बी, जस्ट लाइक दैट। Grex names can be given to orchid hybrids.
देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ ऑर्किड्स एंड उनको ग्रेक्स नेम दिया जाता. हाइब्रिड नेम इज ट्रीटेड लाइक अदर बोटेनिकल नेम्स फॉर मोस्ट पर्पसेस, बट difference is in that hybrid name does not necessarily refer to a morphologically distinctive group but applies to all progeny of the parents no matter how much they vary. ध्यान से सुनो, hybrid name does not necessarily refer to morphologically distinctive group. मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्टिव ग्रुप को हाइब्रिड नेम दिया जाएगा, बट अप्लाइज टू ऑल प्रोजेनी, लेकिन ऐसे सभी प्रोजेनीज को अप्लाइड है ऑफ पेरेंट नो मैटर हाउ मच दे वेरी, उनमें कितना वेरिएशन है वो देखने की जरूरत नहीं है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मैग्नोलिया वर्सेस सोल्यूजिनिया applies to all progeny from the cross of Magnolia denudata and Magnolia liliflora. मैग्नोलिया के दो वैरायटीज है. इन दो वैरायटीज के क्रॉस के बाद जो भी इंडिविजुअल बनता है उसके नेम जो है, these names are changed. And from the cross of all of their progeny as well as from crosses of any of the progeny back to parent यानी back cross. अभी शायद आप सभी लोगों को पता होगा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस. हेलो हेलो. Yes, sir. ज्योति कुछ बता सकते क्या, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? चलो ज्योति नहीं बता रही तो और कोई बता सकता, कोई भी, एनीबॉडी, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? हाँ बताओ बताओ. एक बोलो कोई भी. हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर. हाँ तो कोई बता सकता है क्या व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? रेसेसिव पेरेंट के साथ सर क्रॉस होता है. टाइप को क्रॉस कर. Cross taken with the one of the recessive parent is known as test cross. Or what is back cross? Sir, one of two parents from which they are derived. Yes, whenever cross is taken from one of the parent, then it is known as a back cross. और आपको शायद ये भी पता होगा, it is called that test cross is always back cross, but back cross is never test cross. Back cross is always never test cross. So देखो, this covers the quite range of flower color. Greek's name, that is for orchids only, differ in that they do not cover crosses from plants within the Greeks, that is F2 hybrids, or back crosses, that is crosses between Greek's member and its parents. So regarding the hybrid only Greek's names are given. Hybrid can be named with ranks like other organisms covered by INCAFP. They are Nothotaxa. From Notho means hybrid plus taxon. If the parents or postulated and decided, differ in the rank, then the rank of Nothotaxon is lowest. अब ये Nothotaxon और taxon के rank के बारे में दिया है. The names of Notho species differ depending upon whether they are derived from species within the same genus or not. If more than one parental genus is involved, then the Notho species name includes Notho genus name. अब ये Notho genus और Notho species ये जो part है ये only hybrid names के बारे में आता है. For example, Pyrus crossed with Brachychenderia is hybrid between two species in the genus Pyrus. मतलब पायरस के दो अलग अलग जीनस में जो क्रॉस किया था उसके बाद इंडिविजुअल डेवलप हुआ पायरस क्रॉस ब्रिस्चेंडेरिया. नेक्स्ट देखते, सोरोबोपायरस ऑरिकुलरिस is the Notho genus Sorobopyrus. It is a hybrid between Sorobus area and Pyrus communis. So there are different types of hybrid varieties of fruits are available. Publication of the name. अब इसके बारे में publication भी name का. Name of the hybrid between genera. Hybrid between genera मतलब है Notho genera
can be published by specifying the name of the parent genera but without a scientific description and do not have a type. Nothotaxon, names with the rank of subdivision of a genus, that is notho subgenus, notho section, notho series, etc. जैसे हम ranks of taxa देखे थे उसमें, just like that in case of hybrid also. They are also published by listing the parent taxa and its successive individuals. Next देखते हैं. थोड़ा सा अभी हेलो सर. हाँ बोलिए. सर सॉरी टू डिस्टर्ब बट अभी नहीं, कालकर मैम का लेक्चर है. हाँ बोलो. सर कालकर मैम का लेक्चर है, अभी मैम वेट कर रहे हैं. कितने बजे? सर 11:30 पे. 11:30 तक. अरे आपने अपना आज एक लेक्चर रहता कि दो रहते? सर आज एक है. ओह सॉरी मैंने समझ लिया कि आप अपने आज दो लेक्चर है. मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. ओके, नो इशू. तो अपना आज का टॉपिक वहीं पे आधा रह गया, हम छोड़ देते अभी. आई सपोज दैट आई हैव टुडे 2 लेक्चर्स. मैं भूल गया था. एक्चुअली आई वाज आउटसाइड नागपुर यस्टरडे एंड हेंस आई डिड नॉट रिमेम्बर. चलो ठीक है, बाकी ज्यादा तो बचे नहीं है. वैसे 2-3 स्लाइड ही बचे हैं. बचा हुआ पार्ट हम कल कंटिन्यू कर लेते. और ऐसा कुछ भी नहीं है. आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? हेलो. यस सर. आप मुझे कभी भी स्टॉप कर सकते हैं. आप मुझे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं समझा तो अगर समझ लो, मुझे भी मालूम नहीं है तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बताऊंगा कि मैं देख के बताता. कोई इशू नहीं है. सो ओके, थैंक यू वेरी मच. अभी ये नहीं करते, ठीक है? हाँ, आप लेफ्ट हो जाओ. थैंक यू सर. ओके, लेफ्ट हो जाओ. लेफ्ट हो जाओ, चलो.